علیکم ناظرین، سندھ نیوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں شمس اکول۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ سینٹ بھی آپ سے لیں گے اور نیشنل اسمبلی بھی رہیں گے اور انشاءاللہ پھر راج کرے گی عوام۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے بدین میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میرے پاس پیار کا جادو ہے، پنجاب میں بھی اس دفعہ حکومت بنا کر دوں گا۔ آصف زرداری کی للکار، کہتے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑا اچھا رسپانس ملا، بلوچستان بھی جاؤں گا، جن کے دل ٹوٹے ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہیں، میاں صاحب کو نظر نہیں آ رہا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی کے نام مسترد کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین ایس ای سی کو کل عدالت میں طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتے ہیں، جے آئی ٹی میں ایسے لوگ ہوں جو ایماندار اور اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوں۔ وزیر اعظم نواز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی ثقافتی برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطوں سے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ 4 مئی کو ناصر باغ میں حکمرانوں سے کئی سوال کرنے ہیں، میاں صاحبان سے پوچھیں گے کہ 4 سال میں آخر انہوں نے کیا کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، جبکہ دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے خود کو عدالت میں پیش کر دیا، عمران خان اپنی باری پر تلاشی نہیں دیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ ڈان لیکس معاملے میں مریم نواز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کے نام ای سی ایل سے خارج کرنے سے متعلق دائر درخواست پر وفاقی حکومت نے جواب داخل کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے مہلت طلب کر لی، مزید سماعت 9 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاناما کیس میں وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کا بدترین میڈیا ٹرائل ہوا، ہم بھی مخالفین کو رعایت نہیں دیں گے۔ 4 خطرناک دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی، ان دہشت گردوں کو فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی زیر صدارت اسلام آباد کے ہسپتالوں میں بے ضابطگیوں سے متعلق آج خود نوٹس کی سماعت۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ اداروں میں ایڈ ہاک عزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو کسی کے حکم کا محتاج ہو وہ آزادانہ کام کیسے کرے گا۔ وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں سحر اور افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں نمائندہ صفاتی تنظیموں کے زیر اہتمام سیمینار، ریلیوں اور مختلف تقاریب کا اہتمام۔ بھارتی سرکار انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ گئی اور دورے پر آئے پاکستانی اسکولوں کے 50 سے زائد طالب علموں کو واپس لاہور بھیج دیا۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پنجاب میں بھی اس دفعہ حکومت بنا کر دوں گا، آصف زرداری کی للکار، کہتے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑا اچھا رسپانس ملا، بلوچستان میں بھی جاؤں گا، جن کے دل ٹوٹے وہ ہمیں بلا رہے ہیں، میاں صاحب کو نظر نہیں آ رہا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے بدین میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میرے پاس پیار کا جادو ہے، پاکستان میں جہاں بھی گیا پیار ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی آج بھی ہماری عوام کی ضرورت ہے، نہ جانے میاں صاحب کو غریبوں سے کیا دشمنی ہے، وہ شعر ہوگا مگر کاغذی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میاں صاحب نے کبھی دیہی ترقی پر توجہ نہیں دی، میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بجلی نہ بنا سکے۔ آصف زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ آج یا کل میاں صاحب کو جانا ہوگا، 2 ماہ بعد جائیں یا 3 ماہ بعد جائیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحب میں آپ کو پہلے کی طرح مارچ میں بھی سینٹ نہیں لینے دوں گا، بولے میاں صاحب ہم سینٹ بھی لیں گے اور قومی اسمبلی بھی لیں گے۔ انہوں نے بدین کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ان زمینوں پر آپ کا حق ہے، میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو زمینیں تقسیم کریں، ان کی زمینوں تک نہر کا پانی پہنچائیں گے اور بے نظیر کارڈ کی تعداد دگنی کریں گے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ 4 مئی کو ناصر باغ میں حکمرانوں سے کئی سوالات کرنے ہیں، میاں صاحبان سے پوچھیں گے کہ 4 سال میں آخر انہوں نے کیا کیا ہے۔
लाहौर में पीपल्स पार्टी की अवाम राब्ता मुहिम जोरों शोर से जा रही है। कमर जमान काहिरा ने अवामी बैठक से खिताब में हुक्मरान जमात को आड़े हाथों ले लिया और नवाज लीग की जानिब से शुरू किए अवामी फलाही मंसूबों को गवाया और साथ ही उनके अंजाम का अहाता भी किया। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर डॉन लेक का जिक्र करना भी नहीं भूले। अवामी लहजा अपनाते हुए नवाज हुकूमत को संगीन नताइज का अदनिया भी दिया। कमर जमान कायरा के खिताब के फौरन बाद कॉर्नर मीटिंग में शरीक कारकुन खाने पर टूट पड़े। किसी ने की छीना झपटी तो कोई दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बास ने दावा किया है कि इमरान खान 4 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, जबकि दानियाल अजीज का कहना है कि वजीर आजम ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। इमरान खान अपनी बारी पर तलाशी नहीं देते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहरी मीडिया से गुफ्तगू की। हनीफ अब्बासी का कहना था कि कोई काम ऐसा नहीं जो इमरान खान और जहांगीर ने क्राइम की सूरत में ना किया हो। इमरान खान की जुबान से इखलाकियात का दर्द अच्छा नहीं लगता। उनका कहना था कि अब हम इमरान खान को भागने नहीं देंगे, अदालत में सुनी सुनाई पर बात नहीं होगी, हमारे पास सबूत हैं। दानियाल अजीज का कहना था कि वजीर आजम ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। इमरान खान अपनी बारी पर तलाशी नहीं देते, ये क्यों छुप रहे हैं? कहाँ गई वो दलेरी, कहाँ गई वो शफाफियत? उन्होंने कहा कि हम उन्हें पकड़ पकड़ कर अदालत लाएंगे। ये सिंध याफ्ता चोर हैं और आज ये एहतसाब का दर्द दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन का कहना है कि डॉन लेक मामले में मरियम नवाज को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तारिक फातमी और राउत तहसीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए एतजाज हसन ने कहा है कि मरियम नवाज वजीर आजम नवाज शरीफ की विरासत को आगे लेकर जाना चाह रही है और हमजा शहबाज शरीफ का पत्ता काटा जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्तीफा दिया तो मरियम नवाज को उनकी जगह पर लाया जाएगा। पनामा फैसले में कहा गया है कि मरियम नवाज वालिद के ज़ेरे कफालत नहीं थी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बेनामीदार नहीं। हो सकता है कि JIT इस नतीजे पर पहुंचे कि मरियम नवाज बेनामीदार हों। डॉन लीग से मुतालिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हुकूमत ने जफर अब्बास और सिर अलमीरा जैसे अच्छे सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। डॉन लेक मामले में मरियम नवाज को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तारिक फातमी और राउत तहसीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। गुज़िश्ता साल भी कश्मीर पर बुलाई गई APC बंद कमरे में थी, लेकिन खबरें बाहर निकली। एतजाज हसन ने कहा है कि चौधरी निसार का ये कहना दुरुस्त है कि ट्विस्ट जहर कातिल ने मरियम नवाज का मीडिया सेल वजीर आजम हाउस में होने वाले तमाम इजलासों को सुनता और रिकॉर्ड करता है। वो ऐसे इजलासों की ट्विस्ट करती हैं जिनमें वो मौजूद ही नहीं होती। चौधरी निसार अली खान में जुर्रत है तो मरियम नवाज की ट्विस्ट बंद कराएं। कौमी असम्बली में कायदे आज़म इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के खिलाफ वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान की सख्ती से मजम्मत करते हुए एतजाज हसन ने कहा है कि वज़ारत दाखिला के 17 ग्रेड के तर्जुमान ने खुर्शीद शाह के खिलाफ बेहुदा बयान दिया। वज़ारत दाखिला के अफसर से बयान जारी करने की बजाय वज़ीर खुद बयान जारी करें। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम का नाम ECL से खारिज करने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत तलब कर ली। मजीद समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत पर डॉक्टर आसिम के वकील लतीफ खोसा से सफरी और अस्पताल में दाखिले से मुतालिक तफसीलात अदालत में पेश की। अपने दलाइल में लतीफ खोसा ने कहा है कि डॉक्टर आसिम शदीद अलील हैं, इलाज के लिए बैरून मुमालिक जाना जरूरी है। उनका कहना था कि डॉक्टर आसिम ने लंदन जाने के लिए 7 मई जबकि वापसी के लिए 22 मई की टिकट भी ले रखी है। अगर बरवक्त इलाज नहीं हुआ तो वो मफलूज हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने की मोहलत तलब करने पर समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली का कहना था कि रमजान उल मुबारक में सैर और अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबिद शेर अली का कहना था कि हमने कौम को ये नहीं कहा था कि रातों रात बिजली आ जाएगी। हमारी कोशिशों से आज मुल्क में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, जबकि सन्नतें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं।
रवां बरस के आखिर तक मुल्क में बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट तक जा पहुंचेगी, लेकिन बिजली वहां मिलेगी जहां लोग बिल देते हैं। चोरी करने वालों की बिजली काट देंगे। रवां बरस रमजानुल मुबारक में सैर और अफ्तार के वक्त में लोड शेडिंग नहीं होगी। गुज़िश्ता बरस इनकी अयाम में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक था, लेकिन रवां बरस के इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से बिजली की तलब बढ़ी। चंद दिन ज्यादा लोड शेडिंग का मसला हुआ और इसके वजाहत हमने की थी। बिजली बहरान और अपोजिशन के एहतजाज पर वजीर मुमलिकत का कहना था कि पीपल्स पार्टी और दीगर मुखालफिन लोड शेडिंग कम होने और सस्ती बिजली देने पर एहतजाज करने जा रहे हैं। पंखे उठाकर एहतजाज करने वालों ने अपने दौर में 1 मेगावाट भी पैदा नहीं की। आबिद शेर अली का कहना था कि पनामा केस में हसन हुसैन और मरियम नवाज क्लियर हो चुके हैं। मरियम नवाज को 5 रुकनी बेंच ने क्लियर करार दे दिया। हमने अदालत अज़मी के फैसले का एहतराम किया और लेकिन इल्जाम लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से लोग खौफजदा है। इस सिलसिले में बयान देने पर एहतजाज एहसन को तौहीन अदालत बनता है कि उन्होंने मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ बात की। वजीर मुमलिकत ने कहा कि LPG के ठेके लेने पर एहतजाज एहसन का एहतसाब शुरू होना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस ने उनके अहलिया के ठेके मुस्तरद किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के वालिद को सजा के तौर पर सरकारी मुलाजमत से मुअत्तल किया गया। खुद इमरान खान की जिंदगी झूठ पर मुबनी है। डॉन लेक्स से मुतालिक आबिद शेर अली का कहना था कि चौधरी निसार डॉन लेक्स पर जवाब देंगे। सहाफ़ी पाकिस्तान की पहचान है और असल सहाफ़ी वही हैं जो मैदान में काम करते हैं और उनके लिए जान की परवाह भी नहीं करते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों के ज़ेर इत्मीनान सेमिनार्स, रैलियों और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का मकसद पेशावराना फ़राइज़ की बेजा आवरी के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी अमेज़ रवैया और सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को दरपेश खतरात से मुतालिक दुनिया को आगाह करना है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया को ये याद दिलाना भी है कि अवाम को हक़ाइक़ पर मबनी खबरें मुहैया करने के लिए कितने ही सहाफ़ी इस दुनिया से चले गए। ये दिन हर साल 3 मई को मनाया जाता है, जिसका आगाज़ 1993 को हुआ और इसके बाकायदा मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जनरल असम्बली ने दी है। भारतीय सरकार इंतहा पसंद के दबाव में आ गई और दौरे पर आए पाकिस्तानी स्कूलों के 50 से ज़ायद तालिब इल्मों को वापस लाहौर भेज दिया गया। पाकिस्तान स्कूलों के 50 बच्चे और असातिज़ा 1 मई को भारत पहुंचे थे, जिन्हें भारतीय पुलिस ने अपनी निगरानी में वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया। भारतीय इंतसाब पसंदों ने पाकिस्तानी तालिबे इल्मों की मेजबानी करने वाली मुल्की NGO की इंतजामी और बच्चों के नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस बच्चे और असातिज़ा शदीद खौफ में मुब्तला हो गए, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी में पाकिस्तान वापस भेजा गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SindNewsOnline.com।